السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ مقد میں چھپا کر لائے گئے سونے کو حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم کے عہدیداروں نے کیا ضبط۔ اس سونے کو انڈیگو کی فلائٹ نمبر 6E187 کے ذریعے امپھال سے اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سونے کی کل مالیت 50 تا 70 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ شادی مبارک و کلیان لکشمی اسکیمات کی رقم میں اضافہ 1,01,116 روپے سے بڑھا کر 1,25,000 کرنے پر حکومت کا غور۔ قومی سطح پر تیسرے محاذ کی تیاریوں میں مصروف وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے فلم اسٹار پرکاش راج کو اہم ذمہ داری دی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انہیں راجیہ سبھا کی نشست کا پیشکش کیا گیا۔ مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے GHMC انجینئر ان چیف ضیاء الدین، CESNDP کشن SE GHMC رتناکر اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ دیگر سرگرمیوں پر کیا تبادلہ خیال اور کیا معائنہ۔ شہر حیدرآباد کے ریئل اسٹیٹ کمپنی پرائڈ انڈیا کے بانی سنوبر بیگ کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے مزید ایک اور جھٹکا۔ پرائڈ انڈیا کے سنوبر بیگ کی جانب سے حیدرآباد کے میڈیا کے خلاف لوور کورٹ سے حاصل کردہ انجیکشن آرڈر کو تلنگانہ ہائی کورٹ نے کیا مسترد۔ جل جیون مشن کے تحت واٹر گورننس کو مضبوط کرنا ضروری۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، ملک کے ہر گاؤں میں 2024 تک لوگوں کو نلوں سے صاف پانی ملنا چاہیے۔ بجٹ میں گاؤں کے لیے مختص کیے گئے فنڈز کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ کرناٹک میں بجرنگ دل کارکن کے قتل کے بعد پولیس اور انتظامیہ حالات قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کر رہی۔ اسی ضمن میں آج ضلع اڈپی میں ریپڈ ایکشن فورس اور پولیس نے کیا فلیگ مارچ۔ نواب ملک سے ED کے دفتر میں پوچھ تاچھ پر NCP شیو سینا برہم، اسے مہاراشٹر کی بے حرمتی دیا قرار۔ UP انتخابات، معروف شاعر منور رانا کا نام ووٹر لسٹ سے غائب، چھلکا درد۔ معروف شاعر منور رانا نے ووٹر لسٹ میں نام نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، جب حکومت ہی ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں دے رہی ہے تو پھر غم کس بات کا، نیز الیکشن مسائل پر نہیں ہو رہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ مقد میں چھپا کر لائے گئے سونے کو حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم کے عہدیداروں نے ضبط کر لیا۔ اس سونے کو انڈیگو کی فلائٹ نمبر 6E187 کے ذریعے امپھال سے اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ چوکس کسٹم کے عہدیداروں نے امپھال کے اس مسافر کے خلاف سونے کی اسمگلنگ کا معاملہ درج کر لیا۔ یہ سونا، جس کی مالیت 50 تا 70 لاکھ روپے بتائی گئی ہے، پیسٹ کی شکل میں اس مسافر نے مقد میں چھپا کر لایا تھا تاکہ کسٹم کے عہدیداروں سے بچ کر اس کی وہ کامیابی سے اسمگلنگ کر سکے۔ تاہم تلاشی کے دوران اس سونے کا پتہ چلا، جس کو بعد ازاں ضبط کر لیا گیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم کے لیے جاری کی جانے والی رقومات میں بجٹ 2022-23 کے دوران اضافہ کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم کے تحت جاری کی جانے والی رقم کو 1,01,116 سے بڑھا کر 1,25,000 کرنے کے متعلق غور کیا جا رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے آئندہ مہینے کے اوائل میں پیش کیے جانے والے بجٹ کے دوران وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اس اضافے کا اعلان کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ریاستی حکومت کی جانب سے آئندہ بجٹ کے دوران کئی اسکیمات میں رقومات کی تخصیص میں اضافے کے ساتھ ساتھ شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم کی رقومات میں اضافے کی تجویز روانہ کی گئی ہے، جسے حکومت اور وزارت فائنانس کی جانب سے قبول کر لیا گیا ہے۔
कौमी सतह पर तीसरे मुहाज की तैयारियों में मसरूफ वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने फिल्म स्टार प्रकाश राज को अहम जिम्मेदारी दी है और बताया जाता है कि उन्हें राज्यसभा की निशस्त का पेशकश किया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों और कायदीन से प्रकाश राज के बेहतर राब्ते को इस्तेमाल करते हुए केसीआर उन्हें तेलंगाना से राज्यसभा के लिए मुंतखब करने पर गौर कर रहे। तेलंगाना में राज्यसभा की 3 निशस्तें हैं। हाल ही में बंडी प्रकाश के इस्तीफे से एक निशस्त खाली हुई, जबकि जून में कैप्टन लक्ष्मीकांत राव और डी श्रीनिवास की मियाद खत्म होगी। बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन तीनों निशस्तों के लिए एक ही मौके पर एलामिया जारी करेगा। जीएचएमसी इंजीनियर इन चीफ एंड CESNDPN टीम के साथ तरक्याती सरगर्मियों का मुआयना किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सुबह कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी इंजीनियर इन चीफ जियाउद्दीन, CESNDP किशन, SE जीएचएमसी रत्नाकर और दीगर ओहदेदारों के साथ दर्ज झैल कामों का मुआयना किया, जिसमें विरासत नगर में बॉक्स टाइप ड्रेन के अलॉटमेंट को मंजूरी दी गई। नदीम कॉलोनी में आदित्य कॉलोनी से पानी के बहाव को मोड़ने के लिए बॉक्स टाइप ड्रेन के कामों पर बातचीत की गई और बगदाद कॉलोनी और निजाम कॉलोनी में बॉक्स टाइप ड्रेन का भी मुआयना किया। जीएचएमसी के इंजीनियर इन चीफ जियाउद्दीन साहब और चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट जनाब किशन साहब और उनके तमाम सबऑर्डिनेट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, तमाम अहदेदारों के साथ में टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे लिमरा फंक्शनाल से लेकर विरासत नगर तक एक बॉक्स ड्रेन का हाल ही में अकबरुद्दीन अली साहब ने इनाग्रेशन कर और उसको कुछ अलाइनमेंट चेंज करने के लिए तफसीलात देकर अप्रूवल लिया गया। साथ ही साथ जो आदित्य नगर कॉलोनी से नदीम कॉलोनी को जो पानी आता है उसके लिए भी अलाइनमेंट किया गया और मंजूरी अमल में आई। करीब मैं समझता हूँ 7.5 करोड़ का जो नाला है आज उसकी मंजूरी अमल में आई और साथ ही साथ टोली चौकी शातम नगर का भी एक नाले की मंजूरी अमल में आई और मोती दरवाजे के पास भी एक ड्रेन की मंजूरी अमल में आई और साथ ही साथ बगदाद कॉलोनी, लंगरोस, अहमद कॉलोनी वहाँ का भी एक नाले को आज बताकर उसकी भी मंजूरी देने के लिए तय किया गया और लंगरोस, लक्ष्मी नगर, प्रशांत नगर का भी एक बहुत बड़ा ड्रेन था, उसको भी इंस्पेक्शन कराकर तफसीलात बताए। और नाजरीन, मीडिया का काम है आवाम तक हर खबर की सच्चाई को पहुंचाना। इस दौरान मीडिया इदारे और रिपोर्टर्स को कई ऐसी मुश्किलात और चैलेंजेस भी पेश आती हैं, लेकिन मीडिया इन चैलेंजेस से लड़ते हुए आवाम की खिदमत को अंजाम देती है। इसीलिए आवाम को भी मीडिया की इज्जत करनी चाहिए और खास तौर पर मीडिया को भी चाहिए कि वो हमेशा सच्चाई का साथ दे और मजलूम की आवाज बनकर उभरे, चाहे उसे किसी भी मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े। नाजरीन, शहर हैदराबाद के रियल एस्टेट कंपनी जिसका नाम प्राइड इंडिया बताया गया है, उसके बानी सनोबर बेग को तेलंगाना हाई कोर्ट से मजीद एक और झटका लगा है, क्योंकि प्राइड इंडिया के सनोबर बेग की जानिब से हैदराबाद के मीडिया के खिलाफ लोअर कोर्ट से हासिल करदा इंजेक्शन ऑर्डर को तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद के मीडिया की जानिब से प्राइड इंडिया की बदउनवानियों पर मुसलसल नजर रखते हुए रिपोर्टिंग की जा रही थी, जिस पर कंपनी ने मीडिया के 32 इदारों और अफराद के खिलाफ लोअर कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर मीडिया अफराद ने हाई कोर्ट में इसकी अर्जी दाखिल की थी, बादजा जिसकी आज समाअत हुई और हाई कोर्ट का फैसला मीडिया के हक में आया। दिनों से हमारी टीम को तोड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे। एक शहर के लोगों ने एक पॉलिटिकल लीडर का नाम गिरगुट रखा, जो वाकई सोच समझ के रखा, उसका नाम सच में गिरगुट है। जो जिस तरह से गिरगुट रंग बदलता है वो लीडर भी उसी तरह से रंग बदल रहा है। हमारी टीम में मुसलसल फूट डालने की कोशिश कर रहा था, ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि इन्हों बिक गए उन्हों बिक गए, मगर हम लोग कभी बिके नहीं। हम लोग के दिलां साफ़ है और हम लोग यूनिटी बनाकर काम करेंगे। और मीडिया के दलालों को फिर एक बार कहता हूँ मैं, जो बहुत सारे छोटे लड़के हैं हमारी टीम में शामिल है, खास करके छोटा हमारे पास अत्तर मोहिउद्दीन है, जिसको मैं बताना चाहता हूँ ये एक जिंदा मिसाल है सबके लिए, उन दलालों के लिए जो अत्तर मोहिउद्दीन आगे आके यानी जुल्म के खिलाफ में जो आवाज़ उठाया है, हमारा साथ दिया है, उसको सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं। और मीडिया के दलालों को ये कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी हम
जंग का आगाज कर देंगे। और एक बात हम आप लोगों को सभी लोगों को ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी 10 लोग यहाँ पर मीडिया हाउसेस हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये जो सेट असाइड आया है। हम सब सिंडिकेट मिलकर जब ये फाइल कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोगों के लिए ही ये ऑर्डर्स आया है। जितने भी तमाम 32 मेंबर्स जो अलग हैं उन लोगों के लिए ये ऑर्डर्स नहीं है और हम उन लोगों की कोई मदद करने वाले नहीं है। ये सिर्फ हमारी 10 लोगों की यूनिटी है। पुलिस स्टेशन चिलकलगुड़ा की एक टीम ने ब्राह्मण बस्ती निवास नागजर चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद में ममनुआ गांजे की फरोख्त के सिलसिले में मुसद्दिक़ा इत्तला पर 5 मंशियात फरोशों और सार्फिन को गिरफ्तार कर लिया और मजमूई तौर पर 775 ग्राम कॉन्ट्राबार्सन गांजा जब्त कर लिया गया। मज़कूरा मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद इम्तियाज अहमद, मोहम्मद सलमान, सईद बशीर, रियाज अहमद खान और मोहम्मद शोएब खान के तौर पर की गई है। पुलिस स्टेशन में एक केस करे हैं और इस केस में 5 आदमी को हम कस्टडी में लेके रिमांड कर चुके हैं और इनके पास गांजा हमें मिले हैं और ये गांजा ये लोग सेल भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं और ये कहाँ से लेके आए ये सारे हम इन्वेस्टिगेशन और कर रहे हैं और जब भी हमें कुछ ब्रेक थ्रू मिलता है इन्वेस्टिगेशन में, ये पूरा नेटवर्क बस्ट करने के लिए मौका मिलता है, हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे जी। ये A1 जिनका नाम इम्तियाज़ अहमद, ये लड़का 21 इयर्स का है और इसके ऊपर PD एक्ट भी लगा हुआ है पहले एंड 22 केसेस में अक्यूज़ड है। ये बाइक थेफ्ट केसेस है बहुत, इसमें सारे ATR बाइक थेफ्ट केसेस एंड रिसेंटली एक NDPS केस में भी इन्वॉल्व है ये। तो लग रहा है कि ये लोग जो क्रिमिनल बिहेवियर दिखाते हैं ये ड्रग्स पे भी उनका काम चला रहा है आजकल एंड वी हैव टू बी कॉन्शियस एंड जो लोग गुड सिटीजन्स हैं वो लोग इंफॉर्मेशन जब भी मिले हमें दे दे ताकि हमारा पूरा सोसाइटी ड्रग फ्री हो जाए। दिस इज़ आवर सिंसियर रिक्वेस्ट टू द पब्लिक ऑफ हैदराबाद एंड ऑल्सो स्पेसिफिकली मोर। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के चौथे मरहले की पोलिंग जारी है और कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की शिकायतें मौसूल हो रही। मारूफ शायर मुनव्वर राना का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है। मुनव्वर राना ने वोटर लिस्ट में नाम न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जब हुकूमत ही वोट डालने का मौका नहीं दे रही तो दुख किस बात का। मुनव्वर राना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी खुशकिस्मती थी कि जिस जगह मैं रहता हूँ पोलिंग बूथ उससे करीब है, मेरे लिए वोट डालना आसान था, लेकिन जब मैंने यहाँ के मेंबर से पर्ची मांगी तो मालूम हुआ कि मेरा वोट ही नहीं है, सिर्फ मेरी बीवी का वोट है। पर्ची उन्हें मिली थी। जाहिर सी बात है कि इस बारे में क्या कहा जा सकता है। मुनव्वर राना ने कहा कि गुज़िश्ता बार मेरा वोट था। मैं ये इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि मेरा वोट जानबूझकर काटा गया है, लेकिन मेरा वोट ना होने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बेहतर हुक्मरानी नहीं है। बद इंतजामी की वजह से हमारी पर्ची नहीं आई और हम वोट नहीं डाल सके। इलेक्शन के मामले पर बात करते हुए मुनव्वर राना ने कहा है कि जिन इश्यूज पर इलेक्शन होना चाहिए था उन पर इलेक्शन नहीं हो रहा। खास तौर पर बीजेपी इन मसाइल पर जंग नहीं लड़ रही है जिन पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। वो इन मसाइल पर इंतखाबात लड़ रही जिन पर वो जवाब मांगती है। उन्होंने मजीद कहा कि धर्म के नाम पर लड़ाई करें, मजहब के नाम पर लड़ाई। बीजेपी इलेक्शन नहीं लड़ रही बल्कि गुंडागर्दी कर रही। गुज़िश्ता 70 सालों में पार्टी की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं होता था। पहले इलेक्शन आदमी की बुनियाद पर होता था, लेकिन अब इलेक्शन पार्टी पर मरकूज होता है। लोग सोचते हैं कि हम किस पार्टी को वोट दें। वोट न डालने के सवाल पर शायर मुनव्वर राना ने कहा कि मुझे कोई दुख नहीं, जब हुकूमत ही वोट डालने का मौका नहीं दे रही तो फिर दुख किस बात का होगा।
नवाब मलिक को बगैर नोटिस ईडी की जानिब से उनकी रिहाइश से दफ्तर पर ले जाकर पूछताछ किए जाने पर महाराष्ट्र के बरसर इख्तिदार महाविकास अघाड़ी की जमातों एनसीपी और शिवसेना ने बरहमी का इजहार किया है। एनडीपी की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने कहा है कि बीजेपी के लोग काफी दिनों से इस तरह के ट्वीट कर रहे थे कि नवाब मलिक और महाविकास अघाड़ी के खिलाफ ईडी के नोटिस जारी किए जाने वाले हैं। वो बगैर किसी नोटिस के ही नवाब मलिक को बराह रास्त पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर ले गए। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये किस तरह की सियासत शुरू कर दी है। कर्नाटक में बजरंग दल कारकुन के कत्ल के बाद पुलिस और इंतजामिया हालात काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रही। इसी जिमन में आज जिले उडुपी में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। उधर कर्नाटक के वजीर दाखिला रगा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि अभी तक 8 अफराद को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया है। दीगर से पूछताछ की जा रही है। तमाम जावियों से तफ्तीश जारी है। सीनियर अफसरान बशमूल 2 ADGP और पुलिस फोर्स तहकीकात कर रहे हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मकद में छुपाकर लाए गए सोने को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने किया जब्त। इस सोने को इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E187 के जरिए इम्फाल से स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। सोने की कुल मालियत 50 लाख रुपए बताई गई है। शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी स्कीमात की रकम में इजाफा 1,01,116 रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 करने पर हुकूमत का गौर। कौमी सतह पर तीसरे मुहाज की तैयारियों में मसरूफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फिल्म स्टार प्रकाश राज को अहम जिम्मेदारी दी है और बताया जाता है कि उन्हें राज्यसभा की निशस्त का पेशकश किया गया। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने GHMC इंजीनियर इन चीफ जियाउद्दीन, CESNDP किशन, SE GHMC रत्नाकर और दीगर ओहदेदारों के साथ दीगर सरगर्मियों पर किया तबादला ख्याल और किया मुआयना। शहर हैदराबाद के रियल एस्टेट कंपनी प्राइड इंडिया के बानी सनोबर बेग को तेलंगाना हाई कोर्ट से मजीद एक और झटका। प्राइड इंडिया के सनोबर बेग की जानिब से हैदराबाद के मीडिया के खिलाफ लोअर कोर्ट से हासिल करदा इंजेक्शन ऑर्डर को तेलंगाना हाई कोर्ट ने किया मुस्तरद। जल जीवन मिशन के तहत वाटर गवर्नेंस को मजबूत करना जरूरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, मुल्क के हर गांव में 2024 तक लोगों को नलों से साफ पानी मिलना चाहिए। बजट में गांव के लिए मुख्तस किए गए फंड्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। कर्नाटक में बजरंग दल कारकुन के कत्ल के बाद पुलिस और इंतजामिया हालात काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रही। इसी जिमन में आज जिले उडुपी में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। नवाब मलिक से ईडी के दफ्तर में पूछताछ पर एनसीपी शिवसेना बरहम, उसे महाराष्ट्र की बेहुरमती दिया करार। यूपी इंतखाबात, मारूफ शायर मुनव्वर राना का नाम वोटर लिस्ट से गायब, छलका दर्द। मारूफ शायर मुनव्वर राना ने वोटर लिस्ट में नाम न होने पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा, जब हुकूमत ही वोट डालने का मौका नहीं दे रही है तो फिर गम किस बात का। नेज इलेक्शन मसाइल पर नहीं हो रहे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।